کی عادت ڈالے اور ہم سب کو نماز کا پابند بنائے۔ یہ تھی ہماری پیاری بچی نورین ملک۔ اب میں دعوت دیتی ہوں ذیشان محمود۔ بھرپور تالیوں میں ذیشان محمود۔ تالیاں بجائیں بھائی، پیچھے والی جو لیڈیز بیٹھی ہے وہ تالیاں نہیں بجا رہی ہیں، مجھے یہاں تک آواز نہیں آ رہی ہے، اوپر ہاتھ کریں۔ ذیشان محمود بھرپور تالیوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے مذہب اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک ارکان ہے نماز پڑھنا۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ان کی پابندی کرے۔ دن رات میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرض ہے۔ نماز ہر بالغ مرد اور عورت پر 5 وقت فرض ہے۔ جو اس فرض سے انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو اس کو بلا عذر چھوڑے وہ گنہگار ہے۔ دن رات میں 5 نمازیں ہیں، یہ ہے ظہر، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک کو نماز جمعہ ہے۔ جس نے جمعہ کی نماز پڑھی اس کے ذمہ ظہر کی نماز نہیں رہتی۔ اور بھی نمازیں ہیں، مثلا عید کی نماز اور نماز جنازہ۔ نماز کی کچھ شرطیں ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 1، پاکی یعنی نماز پڑھنے والے کپڑے اور نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہونی چاہیے۔ نمبر 2، ستر یعنی جسم کے اس حصے کا چھپانا جس کا ظاہر کرنا منع ہے۔ نمبر 3، قبلہ کی طرف منہ ہونا۔ نمبر 4، نیت یعنی دل سے نیت کرنا۔ نمبر 5، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 6، وقت کی پابندی۔ ہر نماز کا ایک وقت ہے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز کے فرض یہ ہیں: نمبر 1، قیام۔ نمبر 2، فرائض۔ نمبر 3، رکوع۔ نمبر 4، سجدہ۔ نمبر 5، قاعدہ خیرہ۔ نمبر 6، نماز کو اپنے فعل سے تمام کرنا۔ ان فرضوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ فرض اسی کہتے ہیں جو لازم ہے۔ نماز کے 10 واجب ہیں۔ نمبر 1، سورۃ فاتحہ۔ نمبر 2، الحمد کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھنا۔ نمبر 4، ہر رکوع کو اس کی اصلی ترتیب کے مطابق انجام دینا۔ نمبر 5، 4 رکعت کی نماز میں دوسری رکعت میں سجدوں کے بعد بیٹھنا۔ نمبر 6، قید الا کے بعد کھڑے ہونا۔ نمبر 7، سری نماز میں آہستہ اور جہری نماز زور سے قرائت کرنا۔ نمبر 8، اتحیات پڑھنا۔ نمبر 9، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 10، نماز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر تمام کرنا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ہر کام مل جل کر کرے۔ نماز سب عبادتوں میں سے افضل ہے۔ حضور پاک نے باجماعت نماز پڑھنے پر بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے سے اکیلا نماز پڑھنے سے 27 درجہ افضل ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ شکریہ۔ یہ تھے ہمارے چھوٹے سے بچے، چھوٹے سے پیارے سے ذیشان محمود۔ اب میں آپ کے سامنے نام لینے جا رہی ہوں ہماری چھوٹی سی بچی، پیاری سی بچی، خوبصورت سی بچی، جبھی آپ کے سامنے بڑھیا کا رول بھی ادا کیا انہوں نے، امن خواجہ۔ امن خواجہ کے لیے بھرپور تالیاں۔ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی ہے تالیوں کی، برائے مہربانی تالیاں بجائیے۔ محترمہ صدر جلسہ، خواتین اور میرے ہم عمر ساتھیوں، السلام علیکم۔ ایمان عقیدہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب سے بڑی نعمت نماز دی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اپنی پیارے نبی کو نماز کا تحفہ شب معراج کو عطا فرمایا۔ نماز اسلام سے پہلے بھی دوسرے مذاہب میں فرض تھی۔ قرآن شریف میں نماز کا ذکر
700 بار اور حدیث میں بھی کئی بار ہوا ہے۔ نماز کا طریقہ حضرت جبرائیل نے بتایا ہے۔ نماز کی پہلی اذان حضرت بلال نے دی ہے۔ نماز دل کی روشنی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا معراج ہے، نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، نماز اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ نماز کے ادا کرنے سے انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ 5 وقت کا نماز بندے کو اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھتے ہیں۔ ہر بار اللہ تعالیٰ سے دربار سکون اور روحانی قوت کا خزانہ لے کر لوٹتا ہے۔ نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تمام طبقوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے تاکہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو۔ باجماعت نماز کی منظر دیکھ کر غیر مسلم بھی اسلام کی سچائی کے قائل ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی ہے، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی رب لا تقبل دعا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو بھی نماز کا پابند رکھ اور میرے نسل کو بھی۔ اے میرے پروردگار، ہمارے دعا قبول کر۔ میں بڑی جرات اور پورے ایمان کے ساتھ کہتی ہوں کہ اسلام میں عبادت نماز کی مثال کس سے دوسرے مذاہب میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی معیار بتلا دیا ہے۔ اب ہمارے فرض ہے کہ ہم اپنی بہتری کے لیے خدا کی عبادت کر کے اپنی زندگی اور آخرت کے روشن کریں۔ نماز کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی کا جگہ ہو تو بھی نماز کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اپنی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجدوں کو اپنی نمازیوں سے آباد کرے اور دل دنیا کی مالک لانے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔ یہ تھی ہماری پیاری بیٹی امن خواجہ، جنہوں نے بہت اچھی تقریر کی اور بڑے اچھے نپے تلے انداز میں انہوں نے اپنا بیان دیا۔ میری پیچھے خواتین سے گزارش ہے، برائے مہربانی خاموشی اختیار کریں کیونکہ یہاں پر بہت آوازیں آ رہی ہیں بچوں کی بھی۔ جو مائیں بچوں کے ساتھ ہیں پلیز ان کو چپ کرائیں، کیونکہ اب میں دعوت دیتی ہوں ہمارے مراقبہ حال ہالینڈ کے 4 سیٹر جناب جاوید عظیمی صاحب کو، جن کی وجہ سے آج یہ مراقبہ حال تیسرے سال کا سفر ختم کر کے 4تھے سال میں داخل ہیں۔ تو میں ان کو آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں مراقبہ حال کے 4 سیٹر جناب جاوید عظیمی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آ کے اپنے خیالات سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ پلیز بھرپور تالیاں بجا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ بیگم انجم جاوید عظیمی اور آج کی مہمان خصوصی سفیر پاکستان کی اہلیہ محترمہ آسیہ نقوی صاحبہ، دیگر میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دینے میں آپ لوگ بہت سستی کرتی ہیں، اس میں آپ کو ثواب ہی ملے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ میری بہنوں، میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ ابھی تک آپ تھکی نہیں، آپ کی آواز سے بھی پتہ چل رہا ہے اور آپ کے انداز سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگ اس وقت ایکٹیو ہیں اور تھکی نہیں ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा योम तासीस मुराकबा हॉल हॉलैंड का इनेकाद पजीर है और इसमें आप देख रहे हैं कि हमने रंगारंग प्रोग्राम रखा। हमने कोशिश की कि बच्चों को खेल खेल में और इस तरह के प्रोग्राम तरतीब देकर जो बच्चों को अच्छे लगते हैं उस लिहाज से हमने उसको अरेंज किया। और हम ये चाहते हैं कि खेल खेल में हमारे बच्चे जो है दीन इस्लाम की बातें समझें, दीन इस्लाम की बातें सुनें और उस पर रफ्ता रफ्ता अमल भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमामी बच्चों की जो एक्टिविटीज़ देखी हैं, मैं ख़ुद मौजूद रहा और इसके साथ साथ जो बच्चों ने जो बिलखुसूस नमाज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, और मैं समझता हूँ ये हमारे बच्चों की और हमारी खुशकिस्मती है कि इस दयारे गैर में भी हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की बात कर रहे हैं। और सिलसिला अज़ीमिया जो कि एक रूहानी सिलसिला है, उसका पैगाम भी यही है कि रफ्ता रफ्ता हिकमत के साथ लोगों को अल्लाह के रास्ते पर लगा दिया जाए और इसके साथ साथ नबी पाक की तालीमात को आम किया जाए। मैं इस प्लेटफार्म से मुराकबा हॉल हॉलैंड के प्लेटफार्म से आप तमाम बहनों का, बेटियों का, माओं का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। और बिलखुसूस बेगम साहिबा का, आसिया नकवी साहिबा अपने वक्त में से, कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाएँ। मैं इनके लिए बेहद मशकूर और ममनून हूँ। और इसके साथ साथ एक शख्सियत जिनको हमने इस प्रोग्राम के सिलसिले में काफ़ी पहले से बता रखा था और उन्होंने इस प्रोग्राम की जो है तशहीर भी की अपने अखबार के ज़रिए से। और आप लोग सब जानते हैं, मेरी माएँ बहनें जो यहाँ बैठी हुई हैं, जज्बा इंटरनेशनल जो है काफ़ी मशहूर अखबार है। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज हमारी इस तकरीब में मुराकबा हॉल, जश्न मुराकबा हॉल हॉलैंड और जश्न आज़ादी पाकिस्तान की इस तकरीब में हमारे मोहतरम दोस्त जनाब वसीम मलिक साहब जो कि ब्यूरो चीफ हैं जज्बा इंटरनेशनल के लिए, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इनके लिए भरपूर तालियां बजाएं। कम्युनिटी के समाजी, मजहबी और जिस किस्म की भी मसाइल हो या ख़बरें हो, उनको ये अपने अखबार में जगह देते हैं। और हमें भी अच्छा लगता है कि इससे पहले अखबारात यहाँ नहीं थे, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए इंटरनेट ने हमें ये मौका दिया, और जिसके लिए मैं जज्बा इंटरनेशनल की पूरी टीम का और बिलखुसूस वसीम मलिक साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ। अब लंबी तकरीर मैं नहीं करूँगा क्योंकि वक्त है कि हम कोई और बात करें। मैं ये चाहूँगा कि हमारे मुराकबा हॉल की जो ख़वातीन की टीम है उसने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, और मेरी दरख्वास्त है आप तमाम से कि मुराकबा हॉल हॉलैंड की टीम के लिए, यानी ख़वातीन की टीम के लिए भरपूर तालियां बजाइए। आज ये सारे के सारा क्रेडिट जो है इन ख़वातीन को जाता है कि उन्होंने अपनी पहचान की ख़वातीन को, माँ बहनों को जमा किया और आज देखने के रौनक की रौनक लगी हुई है। और मुराकबा हॉल की ये एक पॉलिसी है कि जब वो कोई हमारे साथ खुलूस दिल के साथ, मोहब्बत के साथ, इत्तेहाद के साथ, यकजहती के साथ काम करता है तो मुराकबा हॉल हॉलैंड उसका हक नहीं रखता। तो मैं उसी तरफ आना चाहता हूँ क्योंकि हुस्न कारकर्दगी का अवार्ड जो है हम हर साल देते हैं, और इस साल भी ये अवार्ड जो है हम अपनी ख़वातीन, हम अपनी माँ बहनों के दरमियान देने जा रहे हैं। इससे कबल कि मैं सालाना हुस्न कारकर्दगी का अवार्ड दूँ, मैं इससे कबल एजाज़ी अवार्ड, जो कि एजाज़ी अवार्ड होगा, ये सालाना नहीं है, सालाना का ऐलान बाद में होगा। तो मैं दरख्वास्त करूँगा
फरीदा खातून से मेरी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। इन्होंने अपने तहीं बहुत बेमिसाल काम किया। जब भी हमारा प्रोग्राम हुआ इन्होंने आके मदद की और आज भी हमारी इस टीम में और आज भी ये भरपूर तरीके से मदद कर रही हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा फरीदा खातून से कि वो जहां भी हैं वो तशरीफ ले आएं। ये एजाजी अवार्ड है, यानी हौसला अफजाई के लिए। अब जिसका मैं ऐलान करने जा रहा हूं उससे पहले मैं उनकी कारकर्दगी को आपके सामने रखना चाहता हूं। आप खुद फैसला करेंगी कि हमने जो रिपोर्ट बनाई है या जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारे मुराकबा हाल की ख़वातीन हैं, बहनें हैं, वो भी इसको समझ लेंगी। जब से हमारा मुराकबा हाल हॉलैंड शुरू हुआ है उसके बाद ये हमारी टीम में शामिल हुई और शोबाए इंचार्ज ख़वातीन की टीम की इंचार्ज बेगम अंजुम जावेद अजीमी की रिपोर्ट की रोशनी में मैं ये फैसला दे रहा हूं और इसको मैंने भी मंजूर किया है। इस खातून ने, जो हमारी बहुत प्यारी बहन है, जब से वो आई हैं 3 मेंबर बनाए उन्होंने। 3 मेंबर के बनाने के बाद मीटिंग में बाकायदगी से हाजिरी दी और कभी भी उन्होंने छुट्टी नहीं की। छुट्टी की भी है तो उसका पहले से उन्होंने बता दिया कि मैं नहीं आऊँगी। और ज़लज़ला ज़दगान के लिए हमने जो एक प्रोग्राम तरतीब दिया था अपने दुखी बहन भाइयों की खिदमत के लिए, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर हिस्सा इस तरह से लिया कि बारिश हो रही है, बच्चों को घर छोड़ा और अपने दुखी बहन भाइयों के लिए चंदा जमा कर रही हैं। ये कारकर्दगी इनके सामने, हमारे सामने है। और मुराकबा हाल के लिए मुखलिसाना मशवरे दिए और वाइट बाउलस्ट की इंचार्ज भी हैं। मेरी मुराद अपनी प्यारी बहन आसिया अली से है कि वो तशरीफ लाएं और अपना सालाना हुस्न कारकर्दगी का अवार्ड हासिल करें। ये सालाना हुस्न कारकर्दगी का अवार्ड जो है इस दफा आसिया अली को दिया जा रहा है। अब देखें, थोड़ी सी बात मैं अपनी सिखने के लिए करना चाहूंगा, अगर आप लोग इजाजत दें तो। आप लोग आवाज बुलंद के तालियां बजा के जवाब दें। हमारी कोशिश ये है कि हम बच्चों को हिकमत के साथ, मोहब्बत के साथ और बड़े ही एक हकीमाना अंदाज में दीन इस्लाम की तरफ लाएं और इस तरह से देख लें कि हम प्रोग्राम जो है वो अरेंज कर रहे हैं। ज़ाहिर है आप जानती हैं कि प्रोग्राम करने में वक्त भी लगता है और पैसा भी लगता है। जब तक आप बहनों का, माओं का साथ नहीं होगा तो हम इस तरह से प्रोग्राम आगे नहीं कर पाएंगे। आप लोग एग्री है या नहीं? तालियां बजा के आप अपनी रजामंदी का इजहार करें। मैं अपनी टीम की माओ बहनों से दरख्वास्त करूंगा, राहिला आप डिब्बा लेकर आइए। मैं देखना चाहता हूं कि आज जो कुछ हमने किया है हमारी माएँ बहनें उसका जवाब किस तरह से देती हैं। आपको ज़बरदस्ती नहीं है, 1 एरो हो, 2 एरो हो, 3 एरो हो, 5 एरो हो, जो आपकी तौफीक हो आप जो है उसमें डालें, डब्बे में, उस डिब्बे में डालें, ताकि वसीम भाई ने पहले अपनी जेब में हाथ डाला है, इनके लिए तालियां बजाएं। और हमारी राहिला बहन जो है वो डिब्बा लेकर आ रही हैं। आप लोग से जो भी 1 एरो, 2 एरो, 10 एरो, मैं समझता हूँ कोई उठ के हमारी बहन के 1000 एरो ले लो जी सबके। साबरा बानो यहाँ बैठी हुई है, माशाल्लाह बड़ी फलाई काम करती हैं और इनके लिए तालियां बजाएं, खिदमत कर रही हैं। जल्दी से ये डिब्बा आगे की तरफ ले जाएं
ताकि जल्दी जल्दी फैसला हो और आगे जो एवार्ड्स हैं, जो इनामात हैं, वो भी हम तकसीम कर सकें। लॉटरी के सिलसिले में भी मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि ये देखें इतने प्यारे प्यारे इनामात रखे हुए हैं और अगर आप लॉटरी नहीं लेंगी तो इसकी हकदार भी नहीं बन पाएंगी। आपको लॉटरी लेनी होगी अगर आपको ये इनाम लेना है। देखें, और ये सब घर की चीज़ें हैं। हमने ये सोचा कि हमारी माएँ बहनें जो हैं वो अगर उनको इनाम निकले तो कम से कम उनके घर में वो चीज़ें इस्तेमाल हो सकें। तो बराए करम आप लॉटरी पर भी तवज्जो दें और लॉटरी ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें, ताकि ये भी हमारे मुराक़बा हॉलैंड के लिए जो है वो चंदे की सूरत होगी। और इसके अलावा मैं ये दरख्वास्त करूँगा अपनी माँओं बहनों से, जिस तरह से आपने हमारी ये प्रोग्राम को देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम आइंदा भी इसी किस्म के प्रोग्राम करने का इरादा रखते हैं। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टीम में शामिल हों, मेंबर बने। अगर मेंबर नहीं बन सकती तो आप कम से कम उसमें डोनेशन करें। यानी हमारा स्टिक्टिंग मुराक़बा हॉलैंड का अपना एक अलग अकाउंट है, उसमें आप चाहें, आपके पास पेपर पहुंचे होंगे तो आप उसमें चाहें 10, 20 यूरो, 100 यूरो जितना भी आप दे सकती हैं डोनेट करें और इसका अजर जो है अल्लाह ताला आपको अता फरमाएंगे। मैं समझता हूं कि चंदे की रफ्तार जो है ज़रा कम है, इसको बढ़ाया जाए। और डिब्बा मुझे अभी तक खाली नज़र आ रहा है। अब क्योंकि ये होता रहेगा, राइला जल्दी से ज़रा, क्योंकि प्रोग्राम को वाइंड अप हमने करना है। जज साहिबान बड़ी तनदही के साथ और बड़ी चाबुकदस्ती के साथ नतीजे को अख्ज़ कर रही हैं और नतीजा जो है मैं अंजुम अजीमी से कहूँगा कि नतीजा ले आए ताकि उसका ऐलान बाद में किया जाए। अगर वो हतमी नतीजा तैयार हो चुका है, ले आए। चलिए आ जाए। अच्छा, बेगम अंजुम अजीमी से दरख्वास्त है कि यहाँ आ जाए इस तरफ और वो शील्ड उठा लें, वो अपना वहाँ से जो है बेगम साहिबा की शील्ड। और एक हमारी मुराक़बा हाल की रिवायत है कि जो मेहमान हमारी तकरीब में आते हैं हम उनको भी खाली नहीं जाने देते और उनको भी हम जो है यादगार के तौर पे कुछ न कुछ जो है वो देते हैं। तो आज की तकरीब में सफ़ीर पाकिस्तान मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब सिब्त याहिया नकवी साहब की अहलिया आसिया नकवी साहब यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, तो उनको भी हम मुराक़बा हाल हॉलैंड से खाली नहीं जाने देंगे। मैं आप तमाम से दरख्वास्त करूँगा उनके आने से पहले उनको जो हम यादगार के तौर पर शील्ड दे रहे हैं, उनके आने से पहले आप जो है भरपूर तालियां बजाएं। बेगम साहिबा से दरख्वास्त है कि वो अपनी एजाज़ी शील्ड जो है वो वसूल फरमाएं। इससे कबल कि हम नतीजे का ऐलान करें, नतीजे से पहले मैं बड़े ही अदब के साथ मोहतरमा आसिया नकवी साहिबा से दरख्वास्त करूंगा कि वो आकर अपने ख्यालात का इजहार करें।
हेलो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जावेद अज़ीमी साहब, मोहतरमा बेगम अंजुम जावेद अज़ीमी साहिबा और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम। मुझे इस जश्न सालगिरह मुराक़बा हाल की तक़रीब में आकर बेहद खुशी हो रही है। सबसे पहले तो मैं आप सबको इस सालगिरह पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। यहाँ आकर आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला। आप सब लोगों से मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है। मुराक़बा हाल की टीम को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम बच्चों के लिए और अपनी ख़वातीन के लिए अरेंज किया। इस किस्म के प्रोग्राम्स करने के कई फ़ायदे हैं। एक तो कम्युनिटी एक दूसरे के करीब आ जाती है, ख़वातीन की और बच्चों की हौसला अफजाई होती है और सबको एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। इससे आपस की मोहब्बतें बढ़ती हैं। आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में वैसे तो मिल बैठने का मौका कम ही मिलता है, लिहाजा इसके लिए प्रोग्राम बनाना पड़ते हैं और मुराक़बा हाल वाले ये मौका मुहैया करते हैं। वतन से दूर यूरोप के माहौल में ये ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को मज़हब के बारे में और अपने मुल्क पाकिस्तान के बारे में मालूमात रहे और वो मज़हब के भी करीब आएँ और अपने मुल्क के मुतालिक भी जानें। तो आज का प्रोग्राम देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चों के लिए जो आपने क्विज़ रखे थे उसमें बच्चों ने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी स्पेशली नमाज के लिए जो बच्चों ने तकरीरें की इसमें बहुत अच्छी बातें बताएं। मैं वाकई बहुत इम्प्रेस हुई हूँ उनकी नॉलेज को देखकर और जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस से अपने ख्यालात का इजहार किया। और दूसरे छोटे मोटे प्रोग्राम्स, सॉरी मैं पहले ज़रा देर से आने की वजह से देख नहीं सकी, लेकिन जब मैं आई हूँ और कोई इस प्रोग्राम देख रही थी उसमें भी बच्चों का शौक़ और जज्बा देखकर मुझे बेइंतहा खुशी हुई। इससे हमारे बच्चों को अपने माहौल और इक़दार का भी पता चलता है। इस किस्म के प्रोग्राम इस मकसद के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। मैंने यहाँ आने से पहले मुराक़बा हाल के प्रोग्रामों की लिस्ट देखी थी जो कि बहुत अच्छी है। इसके मुख्तलिफ प्रोग्राम लोगों को रूहानियत की तरफ लाते हैं। आजकल के दौर में लोग रूहानियत से दूर होते जा रहे हैं, लिहाजा इस किस्म के प्रोग्रामों से लोग रूहानियत के करीब आते हैं। आप लोगों ने आज का बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यहाँ पर आप सब लोगों में बेहद टैलेंट है। यूरोप में तो लोग शुरू ही से बच्चों के टैलेंट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम भी अपनी ख़वातीन और बच्चों को हमें भी चाहिए कि हम अपनी ख़वातीन और बच्चों के टैलेंट को उजागर करें। मैं आप लोगों का फिर से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं एक बार फिर अपनी आज की मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमा आसिया नकवी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और मुझे उम्मीद है और मैं इस यकीन के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जब भी हमारी मुराक़बा हॉलैंड की ख़वातीन की टीम जब वो प्रोग्राम को अरेंज करेगी तो बेगम साहिबा हमारी सरप्राइज करेंगी। हमें अच्छा लगेगा क्योंकि ख़वातीन का प्रोग्राम है और ख़वातीन को उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और इसी तरह से जब बेगम साहिबा हमारी सरप्राइज करेंगी
تو انشاءاللہ خواتین کے بھی حوصلے بلند ہوں گے اور اس سے بھی اچھا پروگرام ارینج کریں گے. لائیے نتیجہ کیا